غار کے اندر کی فضا سوگ میں ڈوبی تھی۔ وہاں 3 نفوس سہ میں بیٹھے تھے، جن میں ایک عورت تھی جس نے ایک ہی دن میں اپنے سر کا تاج اور جگر کا ٹکڑا کھویا تھا۔ 2 لڑکیاں تھیں جو ایک ہی دن میں یتیم اور بے سہارا ہو گئی تھی، جن کے سر سے سائبان اٹھ گیا تھا۔ اماں، یہ کیا کیا آپ نے؟ عدیمہ خوف زدہ نظروں سے ماں کے پاس پڑے بے جان وجود کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ زینب بی بی نے خالی الذہبی سے پہلے اپنے ہاتھوں کو اور پھر داور کو دیکھا۔ انہوں نے تو صرف اس کی آواز دبائی تھی، لیکن وہ تو سانسیں بھی روک بیٹھا تھا۔ آپا، کیا اب داور کبھی بات نہیں کرے گا؟ عدیمہ نے روتے ہوئے اسے ہلایا، لیکن وہ خاموش بت بنی کھڑی رہی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ کسی ایسی جگہ بھاگ جائے جہاں کوئی اسے یہ خبر دینے والا نہ ہو۔ داور اٹھ جانا، میں اب تجھ سے کبھی نہیں لڑوں گی، تیرا سارا ہوم ورک بھی کر دوں گی، پلیز اٹھ جا۔ عدیمہ نے داور کا کندھا ہلایا۔ نہ چھیڑ اسے، تیرے ابا اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ آخری بار اس نے کہا تھا اب جب بھی کہیں جائیں تو مجھے اپنے ساتھ لے کر جانا۔ دیکھ، تیرے ابا نے اس کی بات مان لی، ہمارا بالکل نہیں سوچا اور اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ زینب بی بی نے عدیمہ کا ہاتھ جھٹک کر داور سے پیچھے کیا۔ وہ اس وقت حواسوں میں نہیں لگ رہی تھی۔ آپا، یہ اماں کیا کہہ رہی ہے؟ ابا کہاں گئے ہیں؟ عدیمہ پر ایک اور قیامت ٹوٹی تھی۔ اس نے وحشت سے ایک بار پھر کشمالہ کو ہلایا، اماں سے پوچھنے کی اس نے زحمت نہیں کی۔ وہ اس وقت اپنے بھائی کی قاتلہ سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کچھ نہیں ہوا انہیں، کچھ دن میں آ جائیں گے۔ لفظ بمشکل اس کے حلق سے ادا ہوئے۔ اس نے عدیمہ کو اپنے ساتھ لگا کر تھپکا تھا۔ ابا ہمیشہ ایسا ہی کرتے ہیں، انہیں مجھ سے زیادہ داور سے محبت ہے، اسی لیے تو ہر جگہ اسے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ عدیمہ نے روتے ہوئے شکایت کی۔ اس پر کشمالہ کے جھوٹ کا اثر نہیں ہوا تھا۔ اس رات ان تینوں کو ہی نیند نہیں آئی تھی۔ صبح کی روشنی پھیلتے دیکھ کر وہ سرنگ سے دوسری طرف آ گئے تھے جہاں سے ان کے سفر کا آغاز ہونا تھا، لیکن اس آواز سے پہلے داور کی تدفین کا کام کرنا ضروری تھا۔ وہ ایک لاش کو ساتھ رکھ کر اس کی بے حرمتی نہیں کر سکتے تھے۔ امجد صاحب نے سرنگ بنانے کے دوران کچھ اوزار غار میں ہی رکھ دیے تھے۔ انہی کی مدد سے اس نے ایک درخت کے پاس گڑھا کھودا۔ قبر کھودنا آتا ہی نہیں تھا، کفن اور غسل کا انتظام بھی نہیں ہو سکتا تھا، بس اس نے اماں کا ایک دوپٹہ لے کر اس کے گرد لپیٹ دیا اور پھر جنازہ پڑھنے لگی۔ وہ کائنات کا سب سے عجیب جنازہ تھا جس میں صرف 2 لڑکیوں نے شرکت کی تھی۔ وہ داور امجد کا جنازہ تھا جو بہت سے دوسرے معصوموں کی طرح آنکھوں میں آزادی کا خواب لیے اس دار فانی سے کوچ کر چکا تھا۔ کشمالہ نے ایک بار ابا سے جنازہ پڑھنے کا طریقہ پوچھا تھا، لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کیسے وقت میں کام آئے گا۔ عدیمہ آنسو بہاتے اس کے پیچھے پیچھے پڑھ رہی تھی۔ داور کو گڑھے میں لٹاتے اس کے ہاتھوں میں واضح لرزش تھی۔ بلند و بالا درخت اور دیو قامت پہاڑ حیرت سے اس چھوٹی سی لڑکی کی کارروائی دیکھ رہے تھے، اس کے حوصلے کو داد دے رہے تھے جو ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہی تھی۔ مالا میرا بیٹا ہے، بہت بہادر بچہ، اسے ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرنا آتا ہے۔ اس کے ذہن میں امجد صاحب کے الفاظ گونج رہے تھے اور وہ بار بار آنکھوں میں تنی دھند کی چادر کو پیچھے دھکیل رہی تھی۔ اسے اماں کو سنبھالنا تھا جو داور کے بعد سے بہکی بہکی باتیں کرنے لگی تھی۔ اسے عدیمہ کا حوصلہ بننا تھا جو غم و خوف کی شدت سے ہراساں ہو رہی تھی۔ آپا پلیز نہ کریں، وہ ڈر جائے گا، آپ کو پتہ تو ہے اسے اندھیرا سے ڈر لگتا ہے۔ اس نے داور کے اوپر پہلی مٹھی بھر کر مٹی ڈالی تو عدیمہ نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ شدت گریہ کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ کشمالہ نے نرمی سے اس کے ہاتھ ایک طرف کرتے ہوئے اپنا کام دوبارہ شروع کیا۔ اتنی ظالم نہ بن مالا، اگر تیرا بھائی گہری نیند سو گیا ہے تو کیا تو اسے ایسے مٹی میں دبا دے گی؟ ہوش کے ناخن لے، اگر تجھے بوجھ لگ رہا ہے تو اپنے داور کو میں اٹھا لوں گی، لا مجھے پکڑا دے۔ زینب بی بی کی جیسے ہی اس پر نظر پڑی غار کے دہانے سے دہل کر اٹھائی تھی اور داور کے اوپر سے مٹی ہٹانے لگی۔ اس نے بمشکل انہیں ہٹایا، وہ وہیں پاس بیٹھ کر اسے کوسنے لگی۔ اب کی بار اس نے آنکھیں بند کر کے اندازے سے مٹی ڈالی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی درخت کی جڑوں کے پاس ایک مٹی کی ڈھیری نظر آنے لگی تھی۔ اس نے پتھر کی نوک سے درخت پہ داور لکھا اور غار میں چلی گئی۔ سامان سمیٹنے کے بعد وہ زبردستی انہیں ساتھ لے کر آگے بڑھی تھی، لیکن ایسے مشکل حالات میں بھی وہ غار کی دیوار پر اپنے ساتھیوں کے لیے ایک پیغام چھوڑنا نہیں بھولی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی یہ پیغام ان تک پہنچے گا یا نہیں، پر اس نے اپنا فرض ادا کر دیا تھا۔ پچھلے 1 دن سے میجر آتش کا برا حال تھا۔ اس نے کشمالہ کو ڈھونڈنے کی ہر ممکن کوشش کر لی تھی، لیکن کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ اپنے ساتھیوں کے سامنے ہوئی حد تک کا احساس اس کے اشتعال میں مزید اضافہ کر رہا تھا، اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ جادو کی چھڑی گھمائے اور وہ لڑکی سامنے آ جائے۔ اب
अपने ऑफिस में बैठे हाथ में पकड़ी कशमाला की पासपोर्ट साइज तस्वीर को घूरते इसकी सोच भी कशमाला के गिर्द गर्दिश कर रही थी। यूनिफॉर्म में बनी वो तस्वीर यकीनन किसी दाखिला फॉर्म के लिए बनवाई गई थी, जो उसे हारिस ने कशमाला के घर से ला कर दी थी। उसी को झुलाते अचानक इसके जहन में एक ख्याल कूदा। उसे बदला लेने का तरीका समझ आ गया था। फौरन सीधे होते इसने मेज पर पड़ा फोन अपने आगे खिसकाया और भवें सकेड़ते हुए एक नंबर मिलाने लगा। आर्मी बेस कैंप दिल्ली। कॉल उठाने के बाद दूसरी तरफ से कहा गया, मेजर आतिश रिपोर्टिंग सर। एक हाथ माथे तक ले जाते हुए इसने बैठे बैठे ही सलूट किया था। यस मेजर, क्या रिपोर्ट है? माउथ पीस से रोबदार आवाज उभरी। सर, हमें बावसूख जराए से खबर मिली है कि जम्मू में एक पाकिस्तानी जासूसा घुस आई है जो लोगों को हमारे खिलाफ भड़का रही है, और ऐसा लगता है कुछ अरसे से हमारे जवानों पर जितने भी पुरअसरार हमले हुए हैं इसी की कारस्तानी है। हमने अपने जराए को इस्तेमाल करते हुए उसकी एक अदद तस्वीर हासिल कर ली है। मेजर आतिश ने अपने प्लान के मुताबिक बोलना शुरू किया। वो लड़की इतना कुछ कर चुकी है और तुम हाथ पर हाथ धरे किस इंतजार में बैठे हो? मुकाबिल इसकी बात काटते हुए धाड़ा था, आपकी इजाज़त चाहिए थी सर। अगर हुक्म करें तो हर नाका हर पुलिस स्टेशन पे इसकी तस्वीर भिजवा दूं। हाथ में पकड़ी तस्वीर पर एक नज़र डालते हुए मेजर आतिश असल मुद्दे पर आया जिसके लिए इसने राह हमवार की थी। जो मर्जी करो मेजर, लेकिन वो लड़की जल्द अज जल्द पकड़ी जानी चाहिए। माउथ पीस के पार से मुहकम आवाज़ सुनकर इसके दिल पे ठंडी फवार पड़ी थी। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता माला। उसकी तस्वीर को हाथ में घुमाते हुए मेजर आतिश की आंखें चमकने लगी थीं। कशमाला के पाकिस्तानी जासूस होने वाली खबर वादी के हर नाका पे फैलते फैलते अहमद तक भी आ पहुंची थी। इसीलिए शाम होते ही इसने गार का रुख किया था। ऐसे हालात में कशमाला का कहीं निकलना ठीक नहीं था। इसे कुछ दिन मजीद गार में ही पनाह लेनी चाहिए थी। इसीलिए वो इसे आगे जाने से रोकना चाहता था। उसे यकीन नहीं था कि वो लोग अभी तक चले गए होंगे या नहीं। बस एक मुबहम सी उम्मीद थी शायद उन्होंने आज के दिन निकलने का इरादा मुलतवी कर दिया हो। इसी उम्मीद पर वो गार तक आ पहुंचा था, लेकिन गार खाली था। उसने मोबाइल की टार्च इर्द गिर्द डाली तो वो दीवार पर कुछ लिखा देखकर ठिठक गया। हारिस गद्दार है, मारखोर। टार्च करीब करके इसने जेर लब पढ़ा और इसके आसाब तन गए। उसे समझ नहीं आई अपना खदशा ठीक निकलने पर खुश हो या गमगीन। बिलाशुबा हारिस का शुमार इसके बेहतरीन दोस्तों में होता था। कुछ दिनों से इसकी मशकूक सरगर्मियां देखकर अहमद को शक हो रहा था, लेकिन शक के यकीन में बदलने पर इसे दुख हुआ था। अगर कशमाला ने कहा था फिर इसमें झूठ या गलत फहमी की कोई गुंजाइश नहीं बचती थी। अहमद जानता था वो हमेशा वही बात करती है जिससे खुद वाकिफ हो। कहीं हारिस की वजह से अमजद अंकल के खानदान को कोई नुकसान न पहुंच गया हो। उसे नई फिक्र ने अंगेरा, लेकिन फिर जासूस वाले ड्रामे के जहन में आने पर इसे ये तसल्ली हो गई कि वो मेजर आतिश की गिरफ्त से फिलहाल बची हुई है। मैं दोस्ती का फर्ज बस इतना अदा कर सकता हूँ कि तुम्हारा पर्दा रख लूँ, लेकिन तुम्हें सुधरने का मौका देने के लिए जिंदा नहीं छोड़ सकता। मैं मजीद नुकसान नहीं उठा सकता हारिस। बुड़बुड़ाते हुए इसने पत्थर से कशमाला की लिखी तहरीर पर लाइन लगाई और गार से बाहर आ गया। अगले दिन बस्ती वालों ने एक और लाश देखी थी जिसे वैसे ही पुरअसरार तरीके से मारा गया था जो वहाँ की रिवायत थी। बस्ती में फिर से आहो बका थी, चीखो पुकार थी। लोग भारतीय फौज को कोस रहे थे, गालियां दे रहे थे। ऐसे में एक शख्स बिल्कुल पुरसकून था और वो था अहमद जब्बार, जिसने हारिस का पर्दा रख कर दोस्ती निभाई थी और एक गद्दार को मारकर अपनी रियासत का फर्ज भी अदा कर दिया था। अम्मा पीछे मुड़ मुड़ कर क्या देख रही हैं? जल्दी चलें, अंधेरा होने से पहले हमने अगले पड़ाव तक जाना है। उसने हाथ में पकड़े नक्शा पर नजर दौड़ाते हुए सुस्त रवि से चलती ज़ैनब बीबी को झुंझला कर कहा, जो हर कदम उठाने के बाद पीछे मुड़कर देखने लग जाती थी। वो नक्शा अमजद साहब ने खुद बनाया था, जिसमें गार से लेकर पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल होने तक के खुफिया रास्ते की निशानदही की गई थी। उस नक्शा पर रहने के मकामात के साथ साथ खाने की अशिया खरीदने की दुकानों को भी वाज़े किया गया था। पहाड़ों पर मुश्तमिल रास्ता दुश्वार गुजार जरूर था, लेकिन किसी हद तक दुश्मन से महफूज भी था। इसीलिए वो अंधेरा बढ़ने से पहले नक्शे पर बताए गए अगले पड़ाव तक पहुंचना चाहती थी। कुछ तो ख्याल कर माला भागी जा रही है, भाई को यहीं छोड़ जाएगी, साथ नहीं लेकर जाना। ये दावर कहाँ रह गया है, अभी तक आ क्यों नहीं रहा? पहली बात बुलंद आवाज में उससे कहकर आखिर में वो खुद से बुड़बुड़ाते हुए फिर से नजरें घुमाने लगी थी, जैसे किसी को ढूंढ रही हूँ। अम्मा अब दावर नहीं आएगा, आप समझ क्यों नहीं रही? उसने बेबसी से माँ को समझाना चाहा। ये ऐसे ही नहीं आएगा,
देख मैं इसकी पसंदीदा गाड़ी उठा लाई हूँ, अभी भागता भागता आएगा। उस गाड़ी के बगैर रहता भी तो नहीं था। ज़ैनब बीबी ने आंचल से दावर की गाड़ी निकाल कर इसके सामने की। ये गाड़ी दावर को इतनी पसंद थी कि कहीं भी जाते हुए इस गाड़ी को साथ रखना नहीं भूलता था, इसीलिए गार में आते हुए भी वो गाड़ी साथ लाया था। अम्मा ये गाड़ी मुझे दें और आप आगे चलें, और इनका हाथ पकड़कर आगे बढ़ गई। अदीमा कुछ फासला पर खड़ी सब देख रही थी। दावर के बाद से वो ज़ैनब बीबी से दूर रहने लगी थी। पड़ाव पर पहुंचकर साथ लाए गए खाने में से उन्होंने चंद लुक़्मे ज़हर मार किए थे। यहाँ गार तो नहीं था, लेकिन पहाड़ के दरमियान इतना बड़ा खलासा था जिसमें वो कुछ देर सता सकते थे। सारा दिन पैदल सफ़र में गुजारा था और इस वक्त टांगें शल हो रही थी। वो पहाड़ के साथ टेक लगाकर बैठी तो अदीमा ने आकर इसकी गोद में सर रख दिया। एक हाथ से अदीमा का सर सहलाते हुए तासुफ से ज़ैनब बीबी को देखने गई, जो गले में दावर का मफरल डालकर उसे पकड़ पकड़ कर खुश हो रही थी। ऐसे क्या देख रही है, नजर न लगा देना, ये मेरे दावर का है। उन्होंने मफलर का सिरा इसे दिखाते हुए चूमा था। वो बेबसी से लब काट कर रह गई। कुछ देर तक मफलर को सोलाने के बाद ज़ैनब बीबी भी लेट गई थी और अगले ही पल नींद की वादी में थी। नींद के दौरान भी कभी कभी इनके बड़बड़ाने की आवाज़ आ जाती थी। यख बस्ता हवा का झोंका आया तो इसने बेअख्तियार सोई हुई अदीमा के ऊपर चादर ठीक की थी। बाहर हल्की हल्की बर्फबारी शुरू हो चुकी थी। आपा मेरा नाम तो बर्फ में दब जाएगा। बर्फबारी को देखते हुए उसके पास दावर की आवाज़ की बास गश्त गूंजी। वो अपने नाम के लिए कितना फिक्रमंद था, और अब वो इसे भी बर्फ तले दबने के लिए छोड़ आई थी। कशमाला की आंखों से चंद आंसू टूटकर गालों तक आए थे, जिन्हें इसने नीचे गिरने से पहले ही साफ कर लिया। जो कुछ आज हुआ था वो इस पर कभी भी नहीं सोचना चाहती थी। उसने सख्ती से आंखें मैच लीं। थोड़ी देर लगी थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता नींद ने इसे अपनी आगोश में लेना शुरू कर दिया। सुबह सूरज की तेज रोशनी की वजह से इसकी आंख खुली। अदीमा अब भी इसके गोद में सर रखे सो रही थी। इसने नजर दौड़ाई और ज़ैनब बीबी को इर्द गिर्द ना पाकर इसके पैरों तले से जमीन खिसकी थी। अदीमा का सर कपड़ों की पोटली पर रख के वो पहाड़ से उतर आई। सामने ही ज़ैनब बीबी एक दरख्त से टेक लगाए आसमान की तरफ देख रही थी। वो आहिस्तगी से इनके पास जाकर बैठ गई। तुझे क्या लगता है माला, अल्लाह मुझे दावर का खून माफ कर देगा? उन्होंने आसमान से नजरें हटाकर कशमाला की तरफ देखा। अम्मा आपने कुछ नहीं किया, दावर का और हमारा साथ ही इतना था। अल्लाह ने उसकी इतनी ही जिंदगी रखी थी। कशमाले ने रसानियत से समझाना चाहा। एक तरफ इसके दिल को कुछ सुकून भी मिला कि अम्मा ने हकीकत कबूल कर ली है। ऐसे ही कुछ नहीं किया, मैंने अपने हाथों से इसकी सांसें रोकी हैं। ज़ैनब बीबी ने अपने दोनों हाथ कशमाला के सामने किए। वो बस एक हादसा था, बार बार ना सोचें। उसने एक बार फिर समझाना चाहा। वो बस एक हादसा ही तो नहीं था माला, वो दावर था जिसे मैंने खोया है। ज़ैनब बीबी के हलक से रंधी हुई आवाज़ निकली थी। आप ऊपर अदीमा के पास जाएं, इधर पास ही एक दुकान है, मैं वहाँ से कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। इनके तकलीफ सवालों से बचने का इसे एक यही तरीका समझ आया था, इसीलिए कपड़े झाड़ती हुई उठ गई। वैसे ये पाकिस्तानी जासूसा है, बहुत खूबसूरत, जिसको भी मिलेगी इसके वारे न्यारे हो जाएंगे। दुकान के पास खड़े इन दो बावर्दी लड़कों में से एक ने कहा। चीज़ें खरीदती कशमाला ने भी बेध्यानी में इसके अल्फाज सुने थे। हमारी किस्मत में तो सिर्फ तस्वीर ही आएगी। ऐसे इलाके में वो खुद तो आने से रही, दूसरे ने आह भरी। वैसे लड़की का नाम क्या है, पहले ने पूछा। कशमाला अमजद। अपना नाम सुनकर कशमाला के कान खड़े हो गए। इसने सुरात से इनकी तरफ देखा। नाम बताने वाले ने तस्वीर उल्टी करके इसके पीछे लिखा नाम बताया था और अभी तक तस्वीर उल्टी ही पकड़ी हुई थी, इसीलिए कशमाला आसानी से तस्वीर में मौजूद चेहरा देख सकती थी। उसके हाथ में मौजूद अपनी तस्वीर देखकर इसे हैरत का शदीद झटका लगा था। अगले ही पल वो बेतरतीब होती धड़कनों को संभालती तेज तेज कदमों से चलते हुए अपनी पनाहगाह तक आई थी। उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना था। कशमाला को सफ़र की मुश्किलात दुगनी होती नजर आ रही थी।